ریڈیو پاکستان پروگرام سنیے بزم طلبا، میزبان مجاہد عزیز، پروڈیوسر پارس شاہ، پیشکش ریڈیو پاکستان حیدرآباد۔ بزم طلبا۔ ساتھیوں، پروگرام بزم طلبا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مجاہد عزیز۔ آج ہمارے ساتھ پبلک موٹیویشنل اسپیکر موجود ہیں غلام مرسلین غوری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ فائن، آپ سنائیں؟ ٹھیک ٹھاک، شکر ہے۔ اچھا غلام مرسلین صاحب، پہلا سوال میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یہ پبلک موٹیویشنل اسپیکر ہوتا کیا ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے، اور یہ نوجوانوں کی کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے؟ جیسے آپ کو معلوم ہے پبلک مطلب عوام، جی۔ موٹیویشنل اسپیکر مطلب عوام کے اندر جو ٹیلنٹ چھپا ہوا ہے، نوجوانوں کے اندر جو ایک ٹیلنٹ کہہ لیں اس کو، یا خود اعتمادی کہہ لیں، کانفیڈنٹ کہہ لیں، جو چھپا ہوا ہے، موٹیویشنل اسپیکر کا کام ہوتا ہے کہ ان کو اجاگر کرے، اس چیز کو دکھائے دیٹ دے آر سم تھنگ، کہ وہ کچھ ہیں۔ اور اسی بنا پر جب یہ چیز وہ پہچان لیتے ہیں، اپنے ٹیلنٹ کو، اپنے ایک اسکل کو پہچان لیتے ہیں، تو پھر وہ اس بلندی کو چھو لیتے ہیں جس کا انہیں انتظار ہوتا ہے، جسے آپ انگلش میں ڈیسٹنی بھی کہتے ہیں۔ اچھا، بات یہ ہے کہ اسپیکر جو ہوتا ہے اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو مجھ سے ملنے آ رہے ہیں ان میں ٹیلنٹ ہے یا نہیں ہے۔ بالکل، کیونکہ بعض اوقات جو ٹیلنٹ والوں کو بھی نہیں پتہ تھا کہ ان کے اندر کتنا ٹیلنٹ ہے، اس کو کیسے ابھارتے ہیں آپ؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ میں اس کا جواب یوں دوں گا، ہر انسان کے پاس اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے ان شیپ آف ٹیلنٹ۔ اب ہم خود نہیں پہچان رہے ہوتے کہ ہمارے اندر ٹیلنٹ کیا ہے۔ جو سامنے والی نظریں ہیں، وہ جو ہمیں دیکھ رہی ہیں، وہ پہچان جاتا ہے یار یہ کچھ کرنے والا ہے، He's just gonna do something۔ So یہی وہ چیز ہے کہ جہاں ٹیچر اس چیز کو پکڑ لیتا ہے اور کوشش کرتا ہے اس چیز کو باہر نکالے اور سمجھاتا ہے آپ کا مقام یہ نہیں ہے، آپ کا مقام بہت بلند ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ایک موٹیویشنل اسپیکر ہوتا ہے، مطلب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ مطلب وہ آیا کہ بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہو، یا اس کی کوئی ٹریننگ ہوتی ہے، یا کوئی ایسی لوگوں سے رہنمائی لینی پڑتی ہے؟ تو یہ کس طرح بنتے ہیں؟ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ آف کورس، اگر آپ کے پاس نالج ہے، علم ہے، آپ کے پاس ایجوکیشن ہے، تو آپ دوسروں کی اصلاح بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ رائٹ۔ سیکنڈ، رہی بات کہ کیسے بن جاتا ہے موٹیویشنل اسپیکر، دیکھیں یہ بھی ایک ٹیلنٹ ہے۔ جب آپ کو ایسا لگنا لگتا ہے کہ لوگ آپ کو سن رہے ہیں اور سننے کے بعد اس پہ عمل کر رہے ہیں، اور ان کے دل کو کوئی ایسی بات، کوئی ایسا نقطہ چھو رہا ہے کہ ان کی لائف چینج ہو رہی ہے، تو وہ کہلاتا ہے لائف چینجنگ مومنٹ۔ وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ یس دیئر از سم تھنگ، آئی کین ڈو سم تھنگ، میں کچھ کر سکتا ہوں، کچھ نہ کچھ ہے، میں لوگوں کے اندر چھپے ہوئے ٹیلنٹ کو باہر نکال سکتا ہوں۔ وہی وہ چیز ہے جو وہ موٹیویشنل اسپیکر پہچان لیتا ہے لوگوں کے بارے میں۔ اچھا، بہت سارے ایسے آپ کے طلباء یا شاگرد ہوں گے جو بہت ساری بڑی اچھی جگہ گئے ہوں گے، ان کے کوئی آپ نام لینا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو میں نے موٹیویٹ کیا تو دیکھیں یہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں آج؟ ون آف دیم میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے رشید صدیقی، اچھا، جو ہی واز نتھنگ، لیکن جب وہ اس کو موٹیویٹ کیا گیا، اس کو بتایا گیا کہ اس کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے، اس کے اندر خود اعتمادی کیا ہے، اس نے جب اس کو پہچان لیا اس چیز کو، سو وہ خود کو یہ فیل کرنے لگا کہ آئی ایم سم تھنگ، آئی کین فلائی ٹو، میں بھی اڑ سکتا ہوں، اڑان رکھتا ہوں، اور میں بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ آج وہ ماشاءاللہ بہت اچھی جگہ پر ہے، اور جب وہ میرے پاس تھا تو وہ ایک اسٹوڈنٹ تھا، اسٹوڈنٹ لائف تھا، اس کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی ڈیسٹنی کہاں ہے، اس کو معلوم نہیں تھا کہ اسے جانا کہاں ہے، اس کا مقام کیا ہے، لیکن جب اس نے یہ چیز دیکھی کہ نہیں اب مجھے یہ کرنا ہے، اس کا جو ریئل ٹیلنٹ تھا وہ اس کے اندر موجود تھا، اور جب اس نے باہر نکالا تو آج وہ ایک بلند مقام پر ہے، اچھی جاب بھی کر رہا ہے اور خوشحال ہے، اور اس کا جو براڈ مائنڈ ہے ایک طرح کا، وہ ہی از سم تھنگ ناؤ۔ اچھا، موٹیویشن کے بارے میں تھوڑا میں آپ کو بتاؤں۔ موٹیویشن ایسا ہوتا ہے جیسے کہ آپ کے ہاتھ میلے ہوں، جیسے میلے ہاتھ ہوتے ہیں آپ صابن سے دھو لیں تو صاف ہو جاتے ہیں، لیکن دوبارہ سے وہ میلے ہو جاتے ہیں، دوبارہ سے۔ موٹیویشن بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ نے آن دا اسپاٹ کسی کو موٹیویٹ کیا، وہ جو میل لگا ہوا تھا، زنگ لگا ہوا تھا، وہ ہٹ گیا، لیکن وہ 4-5 گھنٹے بعد یا 1-2 دن بعد جیسے ہی آگے جاتا ہے وہ دوبارہ سے ڈی موٹیویٹ ہونے لگتا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ کیسے ہوتا ہے؟ ابھی میں کسی کو موٹیویشن دوں یا موٹیویشن سیشن دیں، اس میں ہم بتا رہے ہوتے ہیں آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ وہ کر سکتے ہیں۔ کین مینس سکتا ہوتا ہے، کین مینس یو کین ڈو سم تھنگ،
ओके सो ये जो चीज होती है, जब वो हम उसको बता रहे होते हैं, वो बड़ा खुश, बड़ा मोटिवेट हो रहा है अंदर से, उसके एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि शुआएं आ रही होती, यस मैं करने वाला हूँ, अल्लाह ने मुझे सलाहियत दी है। लेकिन जब क्या होता है प्रॉब्लम कि वो जैसे ही 1-2 घंटे गुजरते हैं, वो जो चीज़ उसके दिमाग में तारी होती है वो मिटना, वो रिमूव होना शुरू हो जाता है, और फिर वो दोबारा अपनी उसी मकाम पर, उसी जगह पर। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, जो खुद को समझते हैं यस अब मैं कुछ कर सकता हूँ, और इनकी जो सलाहियतें इनके अंदर हैं, इनके साथ साथ मैं आगे चल सकता हूँ। मैं आपको इसके बारे में यूँ कहूँगा कि इंसान अपने टैलेंट को किस तरीके से पहचान सकता है, उसकी एक मिसाल छोटी सी मैं आपको दूंगा। जी बिल्कुल। उसकी मिसाल ये है, अगर मैं आपसे कहूँ कि फ्यू सेकंड्स के लिए अपनी आंखों को बंद कर लें, जब आप अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिवाय अंधेरे के, तारीकी के, आपको कुछ नजर नहीं आएगा। बिल्कुल। इंसान भी इसी तरह से है, जब तक वो अपने टैलेंट को या जब तक अपने अंदर छुपे हुए खुद एतमादी को नहीं पहचानता, वो अंधेरे ही और तारीकी में ही रहता है। सही और जैसे ही वो आंख खोलता है तो उसको एक अलग सी दुनिया नजर आती है, रोशनियों की दुनिया जिसे कहा जाता है, वो नजर आने लगता है। एक एक चीज, रात दिन, तमाम चीजें देखने लगता है। इसी तरह से जब इंसान अपने टैलेंट को पहचान लेता है, वो इसी तरह से उसकी आंखें मुनव्वर हो जाती हैं, उसका ज़मीर मुनव्वर हो जाता है कि he is something, he has something. राइट। This is the thing. बिल्कुल सही कहा आपने, अच्छी मिसाल दी आपने। Simply. अच्छा, आपने तालीम मतलब कहाँ तक हासिल की है? I'm an MBA in HR and MA English. Yes, क्योंकि इंग्लिश में मेरा शुरू से शौक रहा है। वेरी गुड। और जब मैं 8वीं जमात का तालिब इल्म था, उस दौरान मैंने अपना इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स एडवांस लेवल कर लिया था, और मैंने इन ग्रामर एंड इन स्पीकिंग एज वेल आई गॉट द फर्स्ट पोजीशन। वेरी गुड। सो ये चीज़ें थी जिसकी बिना पर फिर मैंने अपने टीचर से भी बहुत सीखा है। जब मैं उन्हें देखता था तो मुझे लगता था कि यार मुझे भी अपने टीचर की तरह बोलना चाहिए। अच्छा, आपने अपने जो टीचर उनसे मोटिवेशन लिए हैं, डेफिनेटली। उनके बारे में बताएंगे कुछ? हाँ बिल्कुल। मेरे जो टीचर थे वो थे सर बिलाल, वो अभी भी माशाल्लाह हैं और बहुत अच्छे पोस्ट पर, बहुत अच्छी जगह पर हैं। वेरी गुड। और मैंने जब उन्हें देखा, उनके टीचिंग स्टाइल देखा, उनकी मोटिवेशन देखी, तो मेरे अंदर भी कुछ ना कुछ ट्रांसफर हुआ। बिल्कुल, वो नजर आ रहा है। जो ट्रांसफर हुई है वो आज उभर रही है, वो चीज़ चल रही है डेफिनेटली। और अभी भी मैं लेक्चरार हूँ निजी इदारों में, जी जहाँ पर जो चीज़ें चल रही हैं, और वहाँ पर हम सेशंस भी कंडक्ट करते हैं मोटिवेशन के। मैं चाहता हूँ, मेरी ज़िंदगी का एक मकसद है कि मेरे सामने जो बेटा है वो डीमोटिवेट ना रहे, उसके अंदर एक ऐसी स्पिरिट आ जाए कि वो उभर कर सामने आ जाए और बता दे कि ही इज समथिंग। खुदा ने उसको बेमायने नहीं बनाया, खुदा ने उसको अगर बनाया है तो किसी मायने, किसी मीनिंगफुल चीज़ के लिए बनाया, और ही इज हिमसेल्फ मीनिंगफुल, वो खुद भी मीनिंगफुल है, बामायने है। जी हाँ। तो वहाँ ये जो आप जिन इदारों में आप करते हैं, एक में आप लेक्चरर हैं, एक में डायरेक्टर हैं, इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, मुख्तलिफ आपके जो तालीम उसके हवाले से भी आप बहुत कुछ करते हैं, तो वहाँ ऐसे कौन से तलबा हैं जिनको आप ये देख रहे होते हैं कि इस शागिर्द में थोड़ी सी कमी है, तो ऐसा कभी हुआ कि वो सामने आप लेके आए हो, आपको बड़ी खुशी होती है? ऐसा होता है ना, इंसान काम कर उसको दिल को बड़ी खुशी होती है, कोई ऐसा लम्हा हुआ आपके साथ? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि देखिए कमी और खामी हर इंसान के अंदर होती है, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं किसी स्टूडेंट को देख रहा हूँ, या अगर मैं कोई भी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी का है, अगर कोई स्टूडेंट कॉलेज का है, या कोई प्रोफेशनल स्टूडेंट्स भी आते हैं हमारे पास जो बिजनेस से रिलेट करते हैं, जो खुद इंजीनियर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनको भी हम तालीम दे रहे होते हैं, एजुकेट कर रहे होते हैं। वहाँ पर क्या होता है, जो मेन चीज़ें जो हम देखते हैं, जो खामी हम पाते हैं, वो होता है कि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। कॉन्फिडेंस, ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप डेफिनेटली दुनिया को हिला देंगे, लेकिन जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, दुनिया आपको हिला देगी। मैं इसके अंदर एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, मैं अगर आपसे एक सवाल करूँ, अभी आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं कहता हूं कि इंसान की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चीज क्या है? अगर मैं आपका हाथ काट दूं तो आप डिसेबल कहलाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा। अगर मैं आपका पाँव काट दूं तो आप डिसेबल कहलाते हैं। यस। अगर मैं आपकी आंख फोड़ दूं तब भी आप डिसेबल कहलाते हैं। बिल्कुल सही बात। तो आप मानते हैं कि ये रियल डिसेबिलिटी है? नहीं तो लोग कहते हैं यू आर डिसेबल, लेकिन मैं ये मानता हूं ये डिसेबिलिटी नहीं है। डिसेबिलिटी है अगर आपका माइंड जो खुदा ने दिया उसको आप यूज नहीं कर रहे, तो आप डिसेबल हैं। ये चीज बहुत अच्छी बात है, तो आप डिसेबल हैं। वो ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोग जो हैं डिसेबल होते हैं, लेकिन क्या है कि उनकी जो अंदर की आंख है वो अल्लाह ताला जो है इतनी मजीद रोशन कर देते हैं, उनको सब कुछ नजर आने लगता है,
आप हिस्ट्री पढ़ें, हिस्ट्री के अंदर ऐसे बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे जिनकी आंखें नहीं थी, हेलन केलर वन ऑफ देम, ओके, जिनको सुनना नहीं आता था, लेकिन उन्होंने अचीवमेंट देखे आप उनकी। अगर आपके पास ये है, इसका मकसद है आप डिसेबल नहीं है, यू कैन डू मेनी थिंग्स, आप बहुत सी चीजें कर सकते हैं, लेकिन जब आप माइंड से डिसेबल हैं तो फिर आपके हाथ सलामत हो, पाँव सलामत हो, आंखें सलामत हो, कुछ भी नहीं है, कि लोग आपको वही समझेंगे जो आप हैं, जो है सिंपली। और ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोगों के माइंड जो है वो प्रेजेंट तो होते हैं, लेकिन उनका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं होता। तो आपने कभी बहुत अच्छी आपने गुफ्तगू की तरफ रोशनी डाली है। इसके लिए मैं यूं कहूँगा आपसे कि देखें, इंसानों के पास अगर मसाइल ना हो तो जिंदगी का मजा भी नहीं है, बिल्कुल मजा भी नहीं है, कलरफुल नहीं है, खुशी और गम दोनों साथ लेकिन साथ। मैं आपको एक चीज बताऊंगा आज। देखें, आप अगर डीमोटिवेट हैं, अगर आप परेशान हैं, हम क्या करते हैं, अगर आपके सर में दर्द है तो आप सर के दर्द की गोली लेते हैं, जी हाँ, अगर आपके पेट में दर्द है तो पेट के दर्द की गोली लेंगे, अगर आपकी आंखों में कुछ है तो आप ड्रॉप्स लेते हैं, ठीक है, ऐसा ही होता है। इसी तरह से हम क्या करते हैं, हम उलट करते हैं हमारी लाइफ में। हाँ, वो क्या उलट करते हैं, हम क्या करते हैं, आप परेशान हैं या कोई चीज ऐसी है जो आपको डिमोटिवेट कर रही है, आप सिर्फ 90 का एंगल लेते हैं, उसी एंगल से आप दूसरों को भी देख रहे हैं, अपने आप को भी देख रहे हैं, उसी एंगल से तीसरे बंदे को भी देख रहे हैं। अरे हाउ, व्हाई आर यू मी सीइंग लाइक दिस, क्यों देख रहे हैं ये चीजें आप? देखें, हमारे पास 0 to 360 एंगल होते हैं, आप मानते हैं इस बात को? होते हैं 0 to 360। हर प्रॉब्लम का उसका एंगल होता है। अगर आपकी कोई ऐसी परेशानी है जो 90 से सॉल्व नहीं हो रही तो आप उसको 160 से करें। अगर कोई आपकी प्रॉब्लम 160 से नहीं हो रही तो आप उसको 200 के एंगल से करें, अगर 200 से नहीं हो रही तो आप उसको 180 से करें, 180 से नहीं होती 360 से करें। कभी कभार आपको 0 डिग्री भी यूज करने पड़ती है, बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पे उलट है, जहाँ पे 0 डिग्री यूज करने पड़ती है वहां पर आप 360 यूज कर रहे होते हैं, और जहां 360 यूज करना होता है वहां पे 0 डिग्री यूज कर रहे होते हैं। तो यही एक्चुअली ये हमने खुद बना लिया, हम आदी हो गए इस चीज के, इस एटमॉस्फेयर के। हमें खुद के अंदर बेहतरी लाने पड़ेगी, खुद को चेंज करना पड़ेगा, हमें मसलों को शोर शराबे से नहीं, खामोशी से करना पड़ेगा। खामोशी से करना, बिल्कुल सही है। हम शोर शराबा ज्यादा करते हैं, सॉल्व कम करते हैं। हाँ। ऐसा ही होता है। जी हाँ, बिल्कुल। आप सोल्यूशन की तरफ जाएं, आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा, लेकिन शोर शराबे की तरफ जाएं, आपका हाई पॉइंट जो है वो टच करेगा, लेकिन मसला तो हल नहीं होगा। मसला हल नहीं होगा। मसला किस तरह हल होगा? मसला किस तरह हल होगा? जैसे मैंने बताया, 0 to 360 एंगल्स आपके पास हैं, हर मसले का एक एंगल होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप डीमोटिवेट हैं तो आपने 90 का नहीं 180 का एंगल इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपने खुद को सेल्फ मोटिवेटेड बनाना पड़ेगा। दुनिया आपको चाहे डीमोटिवेट कर दे, लेकिन आपने एक दुनिया को कहना है दैट आई एम मोटिवेटेड। मैं आपको इसके बारे में एक छोटी सी मिसाल दूंगा। एक मेंढक था जो तालाब के ऊपर बैठा हुआ था, अच्छा, और और दूसरे मेंढक उसको देख रहे थे। उस मेंढक ने सोचा कि यार मैं क्यों ना जो ये दरख्त है इसकी मैं बिल्कुल ऊंचाई पे पहुंच जाऊं, आई वॉन्ट टू रीच एट द टॉप ऑफ द ट्री, ही थॉट। अब दूसरे जो थे फ्रॉक्स वो उसको डिमोटिवेट कर रहे थे, नो यू कैन नॉट डू, तुम कर ही नहीं सकते, तुम ऊपर पहुंच ही नहीं सकते, तुम तो मेंढक हो, तुम उड़ थोड़ी सकते हो। अच्छा, उसने किसी की नहीं सुनी, वो चढ़ता फिर गिरता, चढ़ता फिर गिरता, चढ़ता फिर गिरता, इस तरह से काफी टाइम हो गया। लेकिन एक वक्त आया, ही रीच एट द टॉप ऑफ द ट्री, वो पहुंच गया वहां पर। और जब वो नीचे आया, सबके सब मेंढक उससे शॉक्ड हो गए और पूछने लगे, यार जरा बताओ तुम कैसे ऊपर पहुंच गए? उसने बोला, क्या कह रहे हो आप, व्हाट आर यू सेइंग? फिर दूसरे दोबारा सवाल किया, यार आप इतनी ऊपर कैसे पहुंच गए हो? उसने पूछा, व्हाट आर यू सेइंग, क्या कह रहे हो? उसने तीसरी बार कहा, यार आप इतनी ऊपर कैसे पहुंच गए हो, हम तो आपको डिमोटिवेट कर रहे थे। उसने बोला, सॉरी आई एम डेफ। उसने बोला, मुझे माफ करें, मैं बहरा हूं, मुझे सुनाई नहीं दिया आप लोग क्या कह रहे थे। तो जब आपको कोई डिमोटिवेट करे, आप बहरे हो जाएं, आप बुलंदियों को छू लेंगे। वाह, दुनिया को ना सुने, बहुत अच्छी मिसाल है। आप दुनिया को ना सुने, आपने अपने मन की सुननी है। अगर आपका मन ये कहता है आप सिंगर बनेंगे, तो आप मन की सुने सिंगर बनेंगे। आपका मन ये कहता है मोटिवेशनल स्पीकर बनेंगे, आप बन। लेकिन दुनिया तो आपको देखें बोलेगी ना, नो यू कैन नॉट डू, लाइक उस मेंढक की तरह। लेकिन वो पहुंच गया क्योंकि वो बहरा था। आप भी बहरे हो जाएं। जब आपकी सक्सेस की बात है, दुनिया की सुने जरूर, डिसीजन अपना लें। चलें, बहुत अच्छी बात है, बड़ी नवाज़ी, बहुत शुक्रिया। गुलाम मुरसलीन गौरी साहब आज हमारे साथ मौजूद थे, पब्लिक मोटिवेशनल स्पीकर। और मुझे उम्मीद है कि तमाम सुनने वाले जितने भी हैं उनको यकीनन बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली होगी। इन्होंने बहुत सारी इसमें आपके लिए बहुत सारी तजावीज़ भी हैं और आपको बताया गया है कि कैसे मोटिवेट होना है। एक बार फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। प्रोड्यूसर पारस शाह और मेज़बान मुजाहिद अजीज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।
ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے بزم طلبا، پیشکش ریڈیو پاکستان حیدرآباد۔